So you're working for an events company called Rock ICT. They manage event bookings for companies and venues in the local area. They also hire equipment to customers. Yes, sir. Okay. Jared is the manager of Rock ICT. All files produced must be of a professional standard and suit the business context. All saved file names must contain your candidate details. All currency should be displayed in euros. You must use the most efficient method to complete each task. You have been provided with the following files: bookings.csv, company details.csv, venues.csv, customers.csv, equipment hire cost.csv. Open and examine each file carefully. Okay, so you have to go through all these files. Now, Rock ICT is holding an event for its customers. Customers have purchased a ticket for the event. The ticket number will be allocated to each ticket sold. Open the customers.csv and add a formula to the ticket number column to automatically display the correct ticket number. The ticket number should be the first two letters and last letter of the customer phoneme, the first and the last letter of customer surname, and the cost of the ticket. So for instance, if the name is John Smith with a ticket cost of 35, that should be Standard. JONSH 35. Save the spreadsheet with the name, event, customers, and so on and so forth. So first of all, we need to open up customers.csv. Let's open up customers.csv. What do we have to do? We have to create a ticket number. Ticket number is basically the first two letters and the last letter of the customer phoname. So equals to left of B2, we take out two letters and we combine it with the last letter of this, which is right of B2, we take one character, and the first character and the last character of the customer surname. So left of what? C2, take out one character, and right of C2, take out one character, and it should be the ticket cost, which is D2. ये समझ आई? And किस लिए लिए? Concatenate करने के लिए. We want to join text together. You have done concatenate. मेरे साथ नहीं क्या? पहले तो ये देखो. ये मैंने लिखा यहाँ पे अब्दुल, यहाँ पे मैंने लिखा फतीन. Right? So equals to, if I select this cell, put an and symbol and select this cell. So that will join the text together. मैं कहता हूँ इसके बीच में स्पेस आनी चाहिए. ठीक है, सो हम क्या करते हैं, एंड स्पीच मार्क्स स्पेस स्पीच मार्क्स एंड. सो टेक्निकली क्या हो रहा है, C2 के कंटेंट्स स्पेस एंड F2 के कंटेंट्स, जिस चीज को जोड़ना है आपस में, जिस चीज को कंबाइन करना है, मर्ज करना है, ठीक है, उसके साथ एंड लगाते जाओ. ठीक है, दिस कैन ऑल्सो बी डन विथ इक्वल्स टू concatenate. concatenate फंक्शन कहते हैं text 1 डिफाइन करो, दिस इज माय text 1 comma text 2 is my space which comes in speech marks, then put a comma and then we put F2. this will also come out to be the same. ठीक हो गया. सो हमने बेसिकली यहाँ पे टिकट नंबर इसी तरह जनरेट किया, लेफ्ट लगा के फर्स्ट टू कैरेक्टर्स एंड राइट लगा के फर्स्ट कैरेक्टर, लेफ्ट लगा के फर्स्ट कैरेक्टर, राइट लगा के फर्स्ट कैरेक्टर, एंड देन वी हैव D2. सबको ज्वाइन कर दिया तो ये हमारी एक्सट्रैक्शन भी होगी और ये हमारा टिकट नंबर भी जनरेट हो गया. सो वी कैन रेप्लिकेट इट फॉर ऑल. ठीक हो गया. उसके बाद save the spreadsheet with event customer. So we have to save this. We go to file, we click on save as, we select where we want to save it. Let's say this is event customers. Right, this is going to be saved as Excel workbook kar lo, CSV kar lo, does not matter. Yeah, where did I save this? Desktop. Next is
Rock ICT needs to mail merge tickets for each customer. ठीक है, अब हमने ये टिकट भेज दिए सारे कस्टमर्स को. Each ticket must display the ticket number. Plug it in here. Each customer must display the ticket number, the customer forename, customer surname, ticket cost, conditional text to display VIP ticket if the ticket cost was 55, otherwise the text is standard ticket. Again, the Rock ICT at a suitable size. अच्छा जी, so हमने टिकट बनानी है जिसके अंदर वी आर टू गिव द टिकट नंबर, कस्टमर फोन नेम सरनेम, टिकट कॉस्ट. VIP ticket आएगा if the ticket cost was 55, otherwise the text is standard ticket, Rock ICT logo at a suitable size. ये तो हमारा टिकट है, each ticket. साथ में उसने कहा है the following requirements must also be met. Each ticket must be of the size 7 by 8.5 centimeter. Only 8 tickets should be displayed on each page. Ticket number must be in italics in a font size of 12 points. The customer name will be in serif font and 16 points. ठीक हो गया. अच्छा जी, तो सबसे पहले वी गोना ओपन अप वर्ड. वी क्लिक ऑन द ब्लैंक डॉक्यूमेंट. ठीक है जी, यहाँ पे हम इसको यहीं पे रखते हैं, इतना जूम इन रखते हैं. स्ट्रेट अवे यू नीड टू गो टू मेलिंग्स. ठीक है, एंड अटैच योर रेसिपिएंट लिस्ट source file. This what we are working in is our master document. हम इसके साथ source file को attach करने लगे. So we select recipients, use an existing list. List हमारे पास already है, events के नाम से भी हमने save की है. Follow कर रहे हो ना? ठीक है, यहाँ पे आ जाए तो हमारे पास भी है events. ठीक है, this is actually a prompt. It is asking us कि which sheet we need to attach. तो हमारे पास customers की sheet है and we will just click on OK. ठीक है, सिर्फ source file attach हुई है. अब अगर आप edit recipient list में जाते हो, you click on it, तो ये आपके पास आपका source data आपको नजर आ रहा है. ये सारे recipients, ये Excel की फाइल जो है import होगी. ठीक है, अच्छा जी. Now we need to define the ticket. टिकट की ये डायमेंशन है आपके पास. After the source file is attached, we need to define the size and we need to define the design of the ticket first. ठीक है, उसके लिए आप क्या करोगे? Straight away you will go to start mail merge and click on labels. ये आपके सामने कुछ इस तरह प्रॉम्प्ट खुलेगा. ठीक है, ये देखो लेबल ऑप्शंस आ रही हैं, इसको मैं डिलीट कर रहा हूं बिकॉज दिस इज माय कस्टम क्रिएटेड साइज. अच्छा, बाय डिफॉल्ट इट डिस्प्लेज some printer information which is by default my printer is selected. कंप्यूटर में जो भी सिलेक्ट हुआ है उसकी ऑब्वियसली प्रॉपर्टीज भी सेट हुई हुई है. ठीक है, उसमें उसका मॉडल वगैरह भी है, सारा कुछ है, उसकी डायमेंशंस वगैरह, और क्या उसकी कैपेबिलिटी है, कितनी उसमें ट्रेज है, वो सारी इंफॉर्मेशन आ रही. यहाँ पे आ रहा है नीचे लेबल इंफॉर्मेशन. लेबल के कुछ वेंडर्स भी होते हैं. ठीक है, सो एग्जामिनर unless until आपको कोई वेंडर बता दे that okay select the Microsoft vendor and this particular size of the label, then that is fine. आप वेंडर सेलेक्ट कर लें वहां से लिस्ट में ड्रॉप डाउन करें. ठीक है, एंड यू कैन सेलेक्ट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट नंबर. हर प्रोडक्ट नंबर इज डिफरेंट. बेसिकली ये क्या है, देयर आर कंपनीज जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज करके अक्सर अपना काम करती हैं. ठीक है, और वो अपने टैग्स, लेबल्स, छोटे छोटे लेबल्स या टैग्स बनाती हैं. तो उन्होंने क्या किया हुआ है, दे आर पेइंग माइक्रोसॉफ्ट ताकि वो अपने ऑफिस के अंदर उनके जो लेबल्स हैं या उनके साइजेस जो हैं वो ऑलरेडी सेव रख लें. ठीक है, तो उनको हर दफ़ा बनाने की ज़रूरत ना पड़े या हर दफ़ा ऐड करने की ज़रूरत ना पड़े. सो दीज आर ऑल डिफरेंट वेंडर्स विच आर एक्चुअली पेइंग माइक्रोसॉफ्ट टू हैव देयर लेबल्स बिल्ट इन प्रीसेट. ठीक है, अब हमारे पास कोई भी ऐसा साइज या तो हम
ढूंढे कि अच्छा जी कौन सा हमारा साइज जो है ना वो फिट बैठता है, मैच करता है। नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हो, यू नीड टू सी द डायमेंशन। साइज इज 7 सेंटीमीटर बाय 8.5, so first dimension is always the width, width, width and height. उसके बाद height. So 7 centimeter is the width, 8.5 centimeter is the height. ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, we will define our label. अच्छा, एक चीज और नोट करें कि यहाँ पे my dimensions are basically appearing in inches. Yes, sir. ठीक है, so my default measurement unit for Microsoft Word is set to inches. अगर वो इंचेस में नजर आ रहा है तो दैट मीन्स कि मैंने जब अपनी डिफाइन करनी है ना डायमेंशन, तो आई विल हैव टू राइट सी एम विद इट। Yes, sir. मैं सिर्फ अगर 4 टाइप कर दूंगा ना तो वो 4 इंचेस कंसिडर करेगा। अगर मुझे उसको 4 सेंटीमीटर्स लेना है तो मुझे उसको 4 सी एम टाइप करना पड़ेगा। है ठीक है, ठीक है, ये तब हो रहा है जब आपकी डिफॉल्ट मेजरमेंट यूनिट इंचेस में सेट है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं and you know how to change it. Yes. ठीक है, so we can go to file, we can click on options. यहाँ पे आपके पास पॉपअप खुलेगा, you come down to the advanced, you scroll down and you find display, it says show measurements in units of inches. इसको drop down करो, you can set it to centimeters, click on OK. ठीक है, Come back to your options, again start and merge, click on labels. ये आपके पास अब आ रहा है, तो ये देखो ये डायमेंशंस क्या आ रही हैं, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर्स में आ रही है, इंचेस में नहीं आ रही। ठीक है, ठीक है, सो नाउ आई डू नॉट हैव टू टाइप सी एम विद इट। अब अगर मैं 4 टाइप करूंगा तो वो सी एम ही कंसिडर होगा, सेंटीमीटर्स कंसिडर होगा। ठीक है, नाउ सिंस आई डू नॉट हैव अ वेंडर एंड अ प्रोडक्ट नंबर, आई विल क्लिक ऑन न्यू लेबल। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज डिफाइन अ नेम फॉर योर लेबल। मैं इसको कहता हूं माई कस्टम लेबल। कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। आपने वो नाम रखना है जो आपको याद है। अच्छा, सबसे पहले तो लेबल की हाइट और विड्थ की बात करो, तो विड्थ इज सपोज टू बी 7, द हाइट इज सपोज टू बी 8.5। सो यहाँ पे आपने सेट कर दिया। ठीक है, ऑल्दो यहाँ पे टॉप और साइड मार्जिन लिखी हुई है विच एक्चुअली मीन्स द टॉप मार्जिन ओनली एंड द साइड मार्जिन। टेक्निकली ये मतलब है इसका, साइड मार्जिन मतलब कि सिंस इट्स इंग्लिश सो इट इज फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, मैं बच्चों को नॉर्मली ये कहता हूँ कि जो टॉप मार्जिन है ना, दिस इज वट एवर यू सेट एज योर टॉप मार्जिन इज ऑल्सो गोइंग टू बी योर बॉटम मार्जिन। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि ताकि आपकी जब ऑटोमेटिकली जब आपका ये चीज जनरेट होगी, वेन एवर इट्स गोइंग टू बी मेड, तो वो सेंटर्ड होगी। एक्चुअली इसका मतलब ये नहीं है कि दिस इज द टॉप एंड द बॉटम, इट इज ओनली द टॉप। ठीक है, लेकिन जब मैं आपको बाद में साइज कंसिडरेशन कराता हूँ ना, तो मैं उसके अंदर बॉटम भी काउंट करवा देता हूँ। जब उसको बॉटम को काउंट करवाता हूँ ना, तो टेक्निकली क्या होता है कि टॉप मार्जिन से वो उतना साइज छोड़ती है 1 सेंटीमीटर, नीचे आपके पास 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा होता है, तो आपका जो डेटा है वो सेंटर में आ जाता है। ये अभी तुम्हें बात समझने की जरूरत नहीं है, मैं उसको बता रहा हूँ जिसको ऑलरेडी ये पता है। ठीक है, सो इट्स नॉट द टॉप एंड बॉटम। ठीक है, हम इसको टॉप बॉटम कंसिडर करवा लेते हैं। खैर एनीवेज, मैं कहता हूँ कि ओके माय टॉप मार्जिन 1 सेंटीमीटर मैं इसके अंदर रख देता हूँ 2 सेंटीमीटर। सो ऊपर से 2 सेंटीमीटर जो है ना वो छुटेगा। प्रीव्यू ऊपर आ रहा है, Yes, sir. ठीक है। साइड से भी मैं कहता हूं कि इट इज गोइंग टू हैव अ गैप ऑफ 2 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। Yes, sir. अच्छा, अब आ जाओ नंबर अक्रॉस। उसने कहा जी नंबर शुड बी देयर शुड बी 8 लेबल्स ऑन ईच Page. पेज। नंबर अक्रॉस मतलब अक्रॉस द विड्थ, मेरे 2 लेबल्स होंगे। नंबर डाउन वर्टिकली कितने आएंगे मेरे पास, 4 लेबल्स आ जाएंगे। तो आपके टोटल लेबल्स बन जाएंगे एक पेज पे कितने, 8 बन जाएंगे। ठीक हो गया। अब आ जाए जी ये कॉन्सेप्ट समझें, वर्टिकल पिच एंड हॉरिजॉन्टल पिच। यू नो अबाउट वर्टिकल पिच एंड हॉरिजॉन्टल पिच, या? अच्छा, नाउ
vertical pitch and horizontal pitch. We will take a shape. Now let's consider that this is my label 1. Yes, sir. ठीक है, and this is my label 2 which is exactly of the same size. तो vertical pitch क्या होती है? Vertical pitch होती है that we will define. Okay, so from the top of the first label till the top of the second label. तो ये जो आपके पास डिस्टेंस है, this whole distance, this is actually the vertical pitch. अब इसके अंदर क्या क्या आ रहा है? इसके अंदर इस लेबल की हाइट भी आ रही है, Yes, sir. इसके अंदर दोनों लेबल्स की बीच की स्पेस भी आ रही है. Yes, sir. ठीक है, ऑल इंक्लूसिव. सो टॉप ऑफ द लेबल टिल द टॉप ऑफ द सेकंड लेबल, ये आपकी वर्टिकल पिच होती है. ठीक है, इसी तरह इफ आई हैव अ लेबल लाइक ओवर हेयर एंड अ लेबल ओवर हेयर, हमने 2 क्रॉस है ना, मान लो कि ये 2 लेबल्स हैं पेज के ऊपर, तो जो आपकी हॉरिजॉन्टल पिच है, आपकी जो हॉरिजॉन्टल पिच होगी वो बनेगी द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट लेबल, स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट लेबल टिल द स्टार्ट ऑफ द सेकंड लेबल. इसमें इसकी विड्थ भी शामिल है, इसमें इसकी स्पेस भी शामिल है. ठीक हो गया सर. सही है, बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन बच्चे पता नहीं क्यों कंफ्यूज होते हैं. सो वर्टिकल पिच. अच्छा, अब ये देखो मेरे लेबल की हाइट क्या है? 8.5. ठीक है, 8.5 का मतलब क्या है कि मेरे वर्टिकल हाइट ऑफ द लेबल इज 8.5. मैं चाहता हूं कि जब उसके नीचे लेबल हो उसका 1 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए. Yes, sir. That means my vertical pitch is going to be 9.5 Yes, sir. because it includes the height of the label Yes, sir. and the space. Space मैं चाहता हूँ 1 सेंटीमीटर की हो. Yes, sir. मार्जिन भी तो आ रहा है बीच. ना मार्जिन इसमें नहीं काउंट करता. Okay, then we have the horizontal pitch. Horizontal कितनी है मेरी? Width is 7. तो width उसकी 7 है. I want to add 1 centimeter of gap between the labels. या 2 सेंटीमीटर का लो, 3, ये तो आपकी मर्जी है ना, आप जितना मर्जी गैप रख लो. ठीक है, मैं कहता हूँ जी 2 सेंटीमीटर का होना चाहिए. 2 सेंटीमीटर के हिसाब से कर लें. अगर 2 सेंटीमीटर के हिसाब से होगा तो मेरी हॉरिजॉन्टल पिच क्या बनेगी? 9, बिकॉज उसकी विड्थ अपनी कितनी है? 7. Yes, sir. हमने 2 सेंटीमीटर और ऐड कर दिए. द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट लेबल टिल द स्टार्ट ऑफ द सेकंड लेबल इट्स 9 सेंटीमीटर. Yes, sir. ठीक है, 2 सेंटीमीटर का ऑटोमेटिकली गैप आ जाएगा. अब आ जाइए यहाँ पे, देखो अब आपने लास्ट जो चीज सेट करनी है विच इज द पेपर साइज, पेज साइज, जो कि बाय डिफॉल्ट अगर आपने गौर से देखा हो तो मैंने न्यू लेबल कहाँ पे क्लिक किया था? यहाँ पे सिलेक्टेड था. आई क्लिक्ड ऑन न्यू लेबल. लेबल नेम ऑटोमेटिकली अपेयर एज 1/2 लेटर और उसका यहाँ पे पेज साइज भी ऑटोमेटिकली डिफाइन हुआ हुआ विच इज लेटर लैंडस्केप. ठीक है, अब जब मैं इन डायमेंशंस के साथ विच इज बेसिकली माय कस्टम डायमेंशन, इफ आई सिलेक्ट ओके, तो मुझे वो कहता है मार्जिन लेबल साइज नंबर अक्रॉस डाउन वैल्यूज प्रोड्यूस अ पेज दैट इज लार्जर देन द पेज साइज ऑलरेडी सिलेक्टेड. सो ऑब्वियसली ये जो पेज साइज है इससे तो बड़ा पेज बन रहा है मेरा. जो मैंने डायमेंशंस और सेटिंग्स रखी हैं वो इस पेज पे सेट नहीं होती है. देखो ये उसका एक डिफाइंड साइज है विच आई कैन नॉट चेंज. ये प्री सेट हुआ है, ऑलरेडी सेव्ड है. सो व्हाट डू आई नीड टू डू इज आई नीड टू डिफाइन माय कस्टम साइज. पहले आ जाओ विड्थ की बात कर लो. मार्जिन मैंने क्या रखी है? 2 सेंटीमीटर. मेरी लेबल की विड्थ कितनी है? 7. कितने हैं लेबल्स अक्रॉस द पेज? 2. 7 + 7 14. 14 प्लस साइड मार्जिन 2 सेंटीमीटर 16.
मेरी जो हॉरिजॉन्टल पिच है मैंने गैप कितना रखा है बीच में, कितना हो गया 16 तो पहले ही है 18, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि साइड मार्जिन अगर मेरी ये 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द राइट भी हो जाए तो 20 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं पेज की विड्थ रख देता हूं एट लीस्ट इट शुड बी 20। हाइट की बात करो, एक लेबल की हाइट कितनी है 8.5, कितने लेबल्स आएंगे नीचे, ये देखो ये नंबर डाउन लिखा हुआ है ना, देयर आर 4 लेबल्स व्हिच आर अपीयरिंग इन वर्टिकल ओरिएंटेशन, तो 8.5 इंटू 4 इज 34, ठीक है। 34 के अंदर टॉप मार्जिन मैंने कितनी रखी है 2 सेंटीमीटर, 36, 2 सेंटीमीटर में नीचे भी गैप रख लेता हूँ 38। वर्टिकल पिच मैंने रखी हुई है 9.5 विच मीन 1 सेंटीमीटर गैप बिटवीन द लेबल्स। कितने ऐड होंगे इसमें, पहले कितना था 36 था यार, वो 34 होना फिर साइड वाले बढ़ते ना 34, एक मिनट, 34 प्लस 2 प्लस 2 38, 38 प्लस कौन सा 1, वर्टिकल पिच का वर्टिकल पिच का 1 है ना, लेकिन वो कितनी दफा आएगी 3 दफा आएगी। 4 लेबल्स बनाओ तो कितनी स्पेसेस बनेंगी बीच में, 3 स्पेसेस बनेगी ना, कितना बना 41, so that means my page height should be at least 41, तो हम इसको कर देते हैं 41। अब जब मैं इसको ओके करूंगा ना, इट शुड नॉट गिव मी एन एरर, इट शुड एक्सेप्ट द साइज। इफ आई क्लिक ऑन ओके, ये मेरा साइज आ गया, आपने इसको ओके कर देना। नाउ द लेबल्स आर बेसिकली सेट, ये अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं, दिस इज हाउ ऑल द लेबल्स आर सिलेक्टेड। फिर इसके बॉर्डर डिस्प्ले करना है वो किस तरह, इसको तो देखो ना पहले, ठीक है। अब क्या करना है, वी नीड टू हैव, अब इंसर्ट मर्ज फील्ड, अब तो काम आसान हो गया। अब आपने क्या करना है, टिकट में करना है टिकट नंबर। नाउ लिसन, सोर्स डेटा में से कोई चीज ऐड करनी होती है मेल मर्ज में, तो वी गो टू इंसर्ट मर्ज फील्ड, वी क्लिक ऑन द टिकट नंबर, वी प्रेस एंटर। अब हमने चाहिए कस्टमर फोरनेम एंड सरनेम, तो हम इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाएंगे, कस्टमर फोरनेम स्पेस कस्टमर सरनेम, ठीक है। एंटर। इन द नेक्स्ट लाइन वी नीड टू हैव द कंडीशनल नो टिकट कॉस्ट, so ticket cost को insert merge field, we click on the ticket cost, we press enter। यहाँ पे क्या कहता है, conditional text to display VIP ticket if the ticket cost was 55, otherwise the text should be standard ticket। तो हम यहाँ पे एक लगाएंगे, एक अदद rule, we drop down rule, it says if then else, select किया, ये हमारा बेस कर रहा है, the rule is based on the ticket cost, if the ticket cost is equals to 55, then insert this text which is VIP ticket, and otherwise it is a standard ticket, ठीक है। सो ये उसी तरह जैसे एक्सेल में इफ का फंक्शन होता है, you click on OK, ये स्टैंडर्ड टिकट, वी इग्नोर दिस वट एवर इज appearing here, ठीक है। लास्टली उसने क्या कहा कि we need to have a Rock ICT logo at a suitable size, so we need to add a logo here, we need to add, go to insert pictures and we locate the logo which is mm11, this is logo, इसको हम सेट कर देते हैं to be appearing in front of my text, and then I'm going to hold down shift and resize it to maintain the aspect ratio। Let's say I'm going to appear it, let's say it's going to appear like this। अब ये मैंने क्या किया, this I have done or designed the label in my master document and this is just one label। हमारे मास्टर डॉक्यूमेंट में या एक पेज के ऊपर कितने लेबल्स हैं, 8, बाकी तो सारे ब्लैंक है ना। So this design needs to be replicated on all other records as well। So what we need to do is we click on mailings and then we click on update labels, update label से सब पे आ गया। Now this master document is ready, ठीक है। This needs to be saved, we go to file, we click on save as,
select where you want to save it. Let's say I want to save it on my desktop. ठीक है, इसको हम नाम रख देते हैं मास्टर डॉक्यूमेंट. ऑब्वियसली एग्जामिनर आपको बताएगा कि किस नाम से रखना है, आपने उसी नाम से रखना है. ठीक है, सो हमने इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लिया. देन वी नीड टू मेल मर्ज द लेबल्स. We come down to finish and merge, click on edit individual documents, whatever comes up, click on all, click on OK. ठीक है, ये अब आपके सारे रिकॉर्ड्स लेबल्स में डिस्प्ले हो गए. ठीक है, एज यू कैन सी द लास्ट 4 रिकॉर्ड्स और लास्ट 4 लेबल्स आर नॉट अपेयरिंग. इधर देखो, छोड़ दो उसको, कुछ नहीं होता तुम्हें, आपसे बड़ी नहीं है वो. Now there are four labels which are empty. There's nothing on it. ठीक है, so this needs to be deleted ना. आप इसको ऐसे select करें and delete it. Now your 8 labels are complete. There are. तुम उसके पर ध्यान दे दो ना. ये देखो, यहाँ पे ये हमारे records थे. These 4 labels are blank. इनको सिर्फ select करके delete कर देना. ठीक है, ये एक्स्ट्रा है क्योंकि डेटा इतना है ही नहीं. डेटा आपका है 8, 8, 16 और 4, 20 रिकॉर्ड्स हैं. तो 3 पेजेस पे लेबल तो 24 बनेंगे ना. तो 4 एक्स्ट्रा थे, वो हमने डिलीट कर दिए, तो ब्लैंक आ रहे हैं. दिस इज बेसिकली योर जनरेटेड लेबल्स. यू गो टू फाइल, क्लिक ऑन सेव एज, क्लिक ऑन डेस्कटॉप and let's say merged letters on your desktop. ठीक है, close this. Master document is saved. Come down. This is your master document. These are your merge letters. सर बस ये करना, 2 डॉक्यूमेंट्स बनते हैं. नहीं, सिर्फ तो ये नहीं करना. दिस इज वन सिनेरियो जो कि लेबल्स बनाने वाला है. एक है जो लेटर्स वाला भी है. इसको जरा गो थ्रू करना. यस सर. ये एक्सरसाइज दोबारा से करना. प्रैक्टिस दिस बिकॉज ये जब भी आगे सिनेरियो यही होगा. ठीक है, नेक्स्ट टाइम यू कम इन, वी टॉक अबाउट मोर रूल्स, कवर अप द रिमेनिंग ऑफ द मेल मर्ज. ठीक है, और उसके अंदर 1-2 टफ एक्सरसाइजेस निकाल के वी विल डू इट. ठीक है.